How are you? Today I have come with a new chapter, Real Numbers. Real Numbers is the first chapter of 9th and 10th standard CBSE syllabus. And also this chapter is very important and interesting also. So let us start Real Numbers. Real Numbers नाम से हम लोगों को पता चलता है कि इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे नंबर्स के बारे में, राइट। सो रियल नंबर होता क्या है, किन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। सो टू नो अबाउट रियल नंबर्स, उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने हैं। सो चलिए हम पहले रीड करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जैसे कि समझ लीजिए, हम जब कुछ चीज़ों को काउंट करते हैं, गिनते हैं जब चीज़ों को, तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। हम जब किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं और जितनी चीज़ें होते हैं हम उसको काउंट करते जाते हैं। यही काउंटिंग नंबर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। दैट इज़ द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जब भी किसी चीज़ को काउंट करते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बट देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, राइट। देखिए इस सेट का कोई एंड होगा? 5 6 7 8 9 10 जितना मर्जी हम गिन सकते हैं, तो इस लाइन का कोई एंड है नहीं। दैट मीन्स देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। सो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, होल नंबर्स। What is whole numbers? When we include 0 with the set of natural numbers, that means हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट ना करके अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, देन ये सेट, इसको हम कहेंगे होल नंबर्स। That means if we include 0 with the set of natural numbers, then this set is called whole numbers. So 0 हो गया हमारा smallest whole number। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। So 0 is the smallest whole number. And similarly there is no largest whole number. No largest whole number. So ये हो गया हमारा whole number. But notice one thing, that every natural number is also a whole number, right? 1 2 3 4 ये जो है ये हमारा नेचुरल नंबर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, but they are also whole numbers. That means every natural number is also a whole number. चलिए नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। What is integers? All the natural numbers, 0 and all the negative forms of the natural numbers. इस टोटल कलेक्शन को कहते हैं इंटीजर्स। All natural numbers, that is 1 2 3 4 5 6 and so on, 0 एंड 0 से पहले क्या होता है हम जानते हैं, 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं। दैट इज़ -1, उससे पहले -2, उससे पहले -3 एंड
सो ऑन। सो ये सारे नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और सारे नेगेटिव फॉर्म ऑफ द नेचुरल नंबर्स, इस टोटल कलेक्शन को हम कहेंगे इंटीजर्स। नोटिस दैट देयर इज़ नो स्टार्टिंग ऑफ इंटीजर। नेगेटिव नंबर्स पीछे जितने हो सके हम इसको बढ़ा सकते हैं। नो स्टार्टिंग ऑफ इंटीजर्स, सिमिलरली नो एंड ऑफ इंटीजर्स। सो देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, नो लार्जेस्ट इंटीजर्स। ओनली we can say that these positive numbers are called positive integers and the negative numbers are called negative integers. So this is the total set of integers. Similarly, see that every natural number is also an integer. Every whole number is also an integer, right? Okay, next, our next topic is number line. What is number line? Suppose draw a line like this. Draw a straight line. This can be extended in this side, also in this side. Both sides can be extended. Now, suppose there is a point called O. Okay, this is the point O. Now, suppose this point O represents the number 0. ये जो number है ये 0 है. Now, on the right side of 0, there lies the positive numbers, and on the left side of 0 there lies the negative integers. We take a unit length here. This is 1. Again take same length, then it represents 2. Again take same length, it represents 3. This represents 4. Similarly, on the left side, take the same length. This represents -1. Again take the same length. This represents -2. This represents -3. Like this, on the left hand side, we can represent all the negative integers. And on the right side, we can represent all the positive numbers. So, all the integers can be represented in a number line. Clear? Next, our next number is rational number. What is rational number? Any number of the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Then the number is called a rational number. That means if we can represent a number in this form, in a form P by Q, where P is an integer, Q is also an integer, but Q must not be 0. Only cannot be 0. बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए Q. Then this number is called rational number. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose there is a number 3 by 8. This is a number, this is a fraction. यहाँ पे P का वैल्यू है 3 और Q का वैल्यू है 8. दोनों इंटीजर्स है, बोथ आर इंटीजर्स 3 and 8. और Q जो है 8 है, मतलब 0 नहीं है. इसका मतलब ये जो है ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है और Q जो है वो 0 भी नहीं है. सो 3 by 8 इज़ ए रैशनल नंबर.
Suppose 0. Is 0 a rational number? Yes, 0 is also a rational number. Why? 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? यहाँ देखिए, p का वैल्यू है 0, q का वैल्यू है 1, दोनों ही इंटीजर्स है. 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और q जो है वो 1 है, मतलब 0 नहीं है. 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है. द न्यूमरेटर कैन बी 0, बस जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो 0/1 हो गया 0 का ही फॉर्म. तो दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सिमिलरली कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जैसे कि 5. वी कैन राइट 5 एज 5/1, करेक्ट? तो ये भी हो गया हमारे p/q के फॉर्म में, जहाँ p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं. दैट मीन्स 5 इज ए रैशनल नंबर. Hence we can say that any integer is a rational number. Every integer is a rational number. -3 सपोज ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? -3/1. इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं. -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है. सो -3 मीन्स ए नेगेटिव नंबर. इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. So here we know about rational numbers. Next जो है equivalent rational numbers. Let us take a rational number, any, suppose 1/2. This is a rational number, right? Now multiply both the numerator and denominator by 2. Suppose multiply 1/2 and multiply 2/2. Then what we get? 2/2 to the 4, right? Again, if we multiply both the numerator and denominator by 3, then 3/3 to the 6, 3/6. ये जो नंबर हमें मिला है 2/4 एंड 3/6, these are called the equivalent rational numbers to 1/2. ये नंबर्स 1/2 के equivalent rational numbers हैं. That means if we multiply the numerator and denominator with the same number, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो रैशनल नंबर मिलेगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू दिस रैशनल नंबर, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात. राइट 4 इक्विवेलेंट rational numbers to 3/4. सपोज 3/4 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने होंगे कितने? 4. सो फर्स्ट 3/4, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस by 2, both the numerator and denominator by 2. Then 3 2s are 6, 4 2s are 8. Again multiply 3/4 by 3. 3 3s are 9, 3 4s are 12. Again multiply this by 4. 3 4s are 12, 4 4s are 16. Next multiply this by 5, both the numerator and denominator by 5. Then we get 3 5s are 15, 4 5s are 20. हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर लिए.
अब ये जो सारे रैशनल नंबर्स हमें मिले हैं ये सब है इक्विवेलेंट टू 3/4। देयरफॉर 3/4 इक्वल्स टू 6/8 इक्वल्स टू 9/12 इक्वल्स टू 12/16 इक्वल्स टू 15/20। सो ये हमें मिल गए हमारे 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/4। सो हियर वी कंप्लीट टुडेज पार्ट। सो गाइज अगले वीडियो में हम इससे आगे का जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे।